Hello everyone, wish you all a very good evening. Hope you all are having a good trading week. Markets are doing good. So I'm Yash Saraf. I'm from the StockEdge product data team, and today we'll be having a smart session on how to use StockEdge, like the three key features of StockEdge, and how to drive our edge, how to enhance our analysis of trading and investing into the stock markets. So this session will be of consisting of three parts. In the first part, I will be telling you all and introducing you to the StockEdge scans, these StockEdge scanners, and then we'll have a short Q&A session, and then we'll move ahead with the my combo scans, like on how to make combination scans and how to drive value from it, how to pick stocks from it, and then we'll again have a small Q&A session, and then in the end we'll understand the usability and the importance of trending stocks, on how to use trending stocks, and then in the end I will tell you all that how to like why how by using StockEdge scans and my combination scans and trending stocks in sync, how we can get better into stock picking and filtration of stocks and taking our investment positions accordingly, right? So before wasting any time, let's start with our session. Mhm. Yes. So as you all know, StockEdge is an EOD platform, right? So in StockEdge was the let me all tell you that StockEdge was the first one in the Indian equity markets to introduce StockEdge scans, to introduce the concept of scans, that is filtration of stocks. That is within clicks, with the preset applied logic, you can filter out stocks on the basis of the respective logic. And StockEdge has more than 450 plus advanced scans. Let me tell you, साढ़े 400 के ऊपर हम लोग के पास एडवांस स्कैन्स है, जो हम लोग अपने सारे यूजर्स के लिए हम लोग ने बनाया है, एंड इस सारे 400 स्कैन में से मोर देन 70% ऑफ द स्कैन्स आर फ्री. सो जैसे जैसे हम लोग स्कैन्स में आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोगों को कई सारा स्कैन्स बताऊंगा, स्कैन्स का मॉड्यूल समझाऊंगा, एंड देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग आज ही जाके स्टॉक स्कैन्स को यूज करो, डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स को यूज करो, समझो क्या है कैसे है, सो ताकि आप लोग का जो ग्रिप है वो और बेटर होता रहेगा. सो what we have done is कि if you see there are multiple data points in the market, right? There are n number of data points available in the market. So अगर हर data point को what we have done is we have categorized into seven broad categories, right? Seven broad categories, that is price scans, volume and delivery scans, technical scans, fundamental scans, futures and option scans, strike wise option scans, and candlestick scans. So let's start with price scans. So what are price scans? Basically, you must have heard this term. आप लोग ने term पक्का सुना होगा, price action, right? Price action. Price action is very very important, and I feel it is one of the most important thing to understand and learn in the markets, because price action says it all. मतलब किसी भी स्टॉक के अंदर जो उसका प्राइस मूवमेंट है ना, वो उसका ट्रेंड ही अपने आप ही बता देता है, irrespective of the other stuff, irrespective of the other news and indicators and everything. बिकॉज मार्केट में किसी भी स्टॉक को लेके जो भी इंटरप्रिटेशन है, जो भी फ्यूचर फोरकास्ट है, व्हाट्स एवर इट इज, वो हर चीज का आपको आइडिया प्राइस ट्रेंड से पता चल जाएगा. सो इसीलिए उस प्राइस एक्शन को कैप्चर करने के लिए व्हाट वी हैव इज प्राइस स्कैन्स. सो इफ यू विल सी मल्टीपल पीरियोडिक यहाँ पे ब्रेकआउट स्कैन्स एंड रेट स्कैन्स, जैसे फॉर एग्जांपल वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, 52 वीक ब्रेकआउट, ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स, राइट? सो इससे क्या समझ में आता है कि आप जब भी किसी प्राइस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो आपको किसी पीरियड पे आप किसी प्राइस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, राइट? आप अगर आप 1 डे का कोई स्कैन देख रहे हो कि 1 डे में कौन सा स्टॉक बुलिश है, तो उसके लिए प्रीवियस डे ब्रेकआउट है. अगर आप वीकली लेवल पे देख रहे हो कि वीकली लेवल पे कौन सा स्टॉक मेरे को ब्रेकआउट दे रहा है, तब वो उस रिस्पेक्टिव वीक के लिए वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या बैड है. सेम वे, अगर आप कोई स्टॉक 52 आप देख रहे हो कि किसी स्टॉक के अंदर 52 वीक ब्रेकआउट आ रहा है, ऑल टाइम ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो उस कंटिन्यूड मोमेंटम के लिए आ रहा है. ठीक है. सो हम लोग जैसे वीकली ब्रेकआउट स्कैन से चालू करते हैं. सो व्हाट इन स्टॉकेज व्हाट वी एम्फसाइज ऑन, कि हम लोग अपना जो भी स्कैन्स का नाम रखते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी रखते हैं, वो हम लोग उसको सिंपल रखने का कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, सो दैट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी.
दैट इज कि जो भी नाम्स है, आप अगर किसी भी नाम को पढ़ोगे तो इट इज सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि इफ यू रीड इट यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन दैट स्कैन. फॉर एग्जाम्पल, क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो मेरा स्टॉक का प्राइस है वो मेरे लास्ट वीक के हाई के ऊपर क्रॉस करके ऊपर क्लोज किया है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो इनसाइड. अगर किसी स्टॉक का प्राइस लास्ट वीक का हाई 100 था एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे गिर गया, एंड फिर इस करंट वीक के अंदर अगर वो स्टॉक 100 को नीचे से क्रॉस करके, से फॉर एग्जांपल 90 से या 95 से क्रॉस करके 102 या 103 पे अगर क्लोजिंग देता है तो वो स्टॉक इस स्कैन के अंदर फिल्टर होगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो अब जैसे हम लोग इस स्कैन के अंदर है क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई, व्हाट डज इट से? इट सेज दैट कि ये उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर करता है, लाइक आई सेड, जो अपने लास्ट वीक के हाई को नीचे से क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दे रहे हैं, which indicates that all these stocks are strong on a weekly level, are strong, are you can say are positive or on a bullish trend on a weekly level. ठीक है. इससे आपको ये पता चलेगा. अब फॉर एग्जांपल, हम लोग अब एक एक करके एक स्कैन मॉड्यूल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स है, जो स्कैन सेक्शन के अंदर जो मल्टीपल फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या मल्टीपल फंक्शनैलिटीज जो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप जब स्कैन मॉड्यूल किसी भी स्कैन को यूज करो तो आपका जो यूजेबिलिटी है वो और बेटर हो जाए. ठीक है. सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है. सबसे पहले क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक है, आपको नाम दिख रहा है. अब अगर आपको किसी भी स्कैन का मतलब नहीं पता, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दी स्कैन और हाउ टू यूज इट, तब आप कि हर स्कैन का आप आई सेक्शन में जा सकते हो. यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दी आई सेक्शन एंड यू विल गेट टू सी द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दैट स्कैन. ऑल्सो इन 99% ऑफ द स्कैन यू विल फाइंड अ वीडियो जिसमें you will get to see in a visual format कि how to get benefited from that scan and what is the meaning of that scan. ठीक है. सो आप ना वीडियो देख के एंड मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्कैन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आपका जो स्कैन बिफोर मूविंग फर्दर टू दी आउटपुट आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो स्कैन रेफर करें वो स्कैन है क्या. ठीक है. अब अब और क्या क्या है यहाँ पे. सबसे पहले आपको दिख रहा है कि अब हम लोग आउटपुट पे आते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द आउटपुट. सो फर्स्ट आपको दिख रहा है कि मेजर स्टॉक्स, यहाँ पे एक मेजर स्टॉक्स है, एक अप्लाइड फिल्टर है. तो लेट मी ऑल टेल यू दैट मेजर स्टॉक्स इज एन स्टॉकेज इन हाउस फिल्टर, which means that it is the combined list of top NSE and BSE 500 stocks. ठीक है. लेट मी रिपीट, मेजर स्टॉक्स एनएससी एंड बीएससी के टॉप 500 स्टॉक को मिला के बनाया हुआ है. बिकॉज व्हाट वी फील इज कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, द मोमेंटम ऑफ द मार्केट, so if we try to filter out stocks, the top 500 stocks of the NSE and 5 BSE 500 exchange, then हम लोग को मार्केट का ट्रेंड समझ में आ जाता है. क्योंकि निफ्टी 500 स्टॉक्स के अंदर आप देखोगे कि मार्केट का जो मेजोरिटी मार्केट कैप है वो सारा कवर हो जाता है. ठीक है. सो इसलिए इट इज एनएससी एनबीसी टॉप 500 स्टॉक्स, मेजर स्टॉक्स. सो मेजर स्टॉक्स का जो फिल्टर है वो डिफॉल्ट अप्लाइड किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी. अब हम लोग सबसे पहले आते हैं एसबीसी बीएससी लिमिटेड. बीएससी लिमिटेड का लास्ट वीक का हाई इट वाज 2895.50. उसके बाद कल येस्टरडे, लेट मी say it again, as we said the stockage is an EOD platform. So ये जो डेटा है ये कल तक का डेटा है. आज का जो डेटा है बेस्ड ऑन टुडेज मार्केट एक्शन, आज का डेटा विद इन 7 to 7:30 अपडेट हो जाएगा ना, आप लोग सबके नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो अभी ये जो हम लोग डेटा देख रहे हैं हम लोग कल कल तक का डेटा देख रहे हैं टिल येस्टरडे सीओडी. सो बीएससी लिमिटेड ने कल 10% का, अराउंड 12% का मूव दिया था एंड इट क्लोज अबव इट्स लास्ट वीक हाई ऑफ 2895, राइट. तो अब अगर आप इस स्टॉक में आज आके देखोगे तो आज इसके अंदर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आए है, क्योंकि कल स्टॉक में अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था, राइट. अब इफ यू सी लास्ट वीक का हाई क्या था, लास्ट वीक का हाई यहाँ पे था 2868.85, 2895.50. ठीक है. तो द वेरी मोमेंट दैट स्टॉक क्रॉस्ड इट्स लास्ट वीक हाई, उसी टाइम पे ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट. सो इससे क्या समझ में आया कि अपने को एक बहुत एक अच्छा खासा 12% का मूव मिला, वो लेकिन कल ही मिल गया था. लेकिन इससे क्या समझ में आता है कि अभी इस करेंट वीकली लेवल पे ये स्ट्रॉन्ग अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये अपने लास्ट वीक के हाई को नीचे क्रॉस नहीं कर देता.
दैट इज ओवर हेयर। तो अगर अभी जब तक ये स्टॉक 2895 का लो को नहीं तोड़ता है, 2895 का लेवल को नहीं तोड़ता, तब तक ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑन वीकली लेवल। ठीक है, सो इट्स ए क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया। अब ऑब्वियसली आप नॉर्मली अब ये चीज देखोगे कि कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर अगर बहुत अच्छा मूव आता है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी, सो इट इज देयर कैन बी टू पॉसिबल सिनेरियोज। नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, सबसे पहला चीज हो सकता है दो विच इज वेरी मोर ऑब्वियस, कि अगर किसी स्टॉक के अंदर 10-12% का 15% का मूव आ जा रहा है, सो इट इज लाइक मोर और वे लाइक इट इज इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट नेक्स्ट डे या तो उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी विच इज वेरी मच लाइकली, और या तो वो स्टॉक का जो मूवमेंट है, जो पॉजिटिव जो बुलिश मोमेंटम है, वो कंटिन्यू करेगा। राइट, सो इफ यू सी कि इस स्टॉक के अंदर जैसे आज ये स्टॉक ऊपर ओपन हुआ था, बट उसके बाद जाके इसमें एक नीचे में एक सेलिंग आया। सो इससे हम लोग को एक क्लियर कट एग्जांपल मिल गया कि हाँ, ये सारे स्टॉक, ये जो सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, ये सारे के सारे स्टॉक इस करेंट वीक में भी काफी ज्यादा हाई है, एंड ये जो लास्ट वीक का हाई लेवल्स है, ये इन सारे स्टॉक्स का नीचे का सपोर्ट लेवल्स है, इफ यू आस्क मी ऑन अ वीकली लेवल। ठीक है, अब अगर आप जैसे किसी और स्टॉक में जाके देखोगे, हम लोग किसी ऐसा स्टॉक में देखते हैं जो कमती कल मूव हुआ था, फॉर एग्जाम्पल गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। सो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के अंदर कल एक अच्छा खासा मूव आया था, 8-9% का, एंड स्टिल उसके बावजूद इस स्टॉक के अंदर आज वो मूवमेंट कंटिन्यूड हुआ था। दैट स्टॉक क्रॉस 1018.50, एंड फिर उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आया, एंड स्टिल द स्टॉक मैनेज टू क्लोज अबाउ अराउंड 2.5%। तो आज भी 2.5% का रिटर्न इसमें मिला। राइट, सो आई एम नॉट सेइंग कि इस स्कैन के अंदर जो सारे स्टॉक्स आएंगे वो सारे के सारे नेक्स्ट डे परफॉर्म करेंगे। आपको इवेंचुअली चेक करना पड़ेगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट मार्केट डे कि वो जो सारे स्टॉक्स है उसमें क्या, या तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है या वो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। अगर इवेंचुअली मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, देन इन द इनिशियल मार्केट आज ही आपको उसमें एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट मिलेगा। राइट, अब जैसे आपने लाइक आई शोड यू द एग्जांपल ऑफ गार्डन रिच बिल्डर्स। सो लेट मी ऑल टेल यू वन थिंग। ठीक है, वॉट एवर जो भी स्क्रीनर्स है यहाँ पे, लाइक और जहां पे भी सारे के सारे स्क्रीनर्स जो भी डेटा के ऊपर बेस किए हुए हैं, ऑल आर मार्केट डेटा, ऑल आर मार्केट का प्राइस, सारे स्टॉक्स का प्राइस डेटा है। नन ऑफ द डेटा इज फेड बाई अस और एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एक्सचेंज। जो मार्केट का जो एक्चुअल डेटा है उसी के ऊपर ये सारे के सारे स्क्रीनर्स बन रहे हैं। राइट, तो इसमें कोई गलती है ऐसा कुछ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट द थिंग इज कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट दैट डेटा पॉइंट। सो उसके हम लोग को स्टॉक का मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि क्या वो स्टॉक के अंदर कंटिन्यूड मोमेंटम है या इट्स अ वन टाइम मूव। ठीक है, अब हम लोग स्कैन के बाकी सारे फीचर्स पे जाते हैं। सबसे पहला चीज, जैसे मेजर स्टॉक्स का फिल्टर किया हुआ है, ऑब्वियसली देयर एन नंबर ऑफ स्टॉक्स, इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। आपको स्टॉक का जो काउंट है वो आपको पिछले टैब में दिख जाएगा, दैट इज 84 स्टॉक्स। तो अब बेसिकली मेजर स्टॉक्स में इफ यू से कि देयर आर 84 stocks in the top NSE and BSE 500 that has closed and crossed above its last week high. सो अब अगर मेरे को इस फर्दर 84 स्टॉक्स को और फिल्टर करना है, सो व्हाट वी हैव इज वी हैव एडवांस फिल्टर्स। अब बाय इंपॉर्टेंस में जाके व्हाट यू ऑल कैन डू इज कि यू कैन अप्लाई फिल्टर ऑफ एनएससी स्टॉक्स, बीएससी स्टॉक्स और एनएससी एफओ, कि आपको खाली उन सारे स्टॉक्स को ट्रैक रखना है जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर है। या सिर्फ जो लोग, जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स अभी मार्केट में नए आए हैं, अगर उनको खाली निफ्टी 50 स्टॉक्स में रखना है फॉर मैनेजिंग द रिस्क, फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क, तो वो खाली निफ्टी 50 स्टॉक्स का फिल्टर लगा सकते हैं। या इफ यू फील कि अभी पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, आज पीएसयू स्टॉक्स का दिन है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई दी फिल्टर ऑफ बीएससी पीएसयू स्टॉक्स, उससे हो जाएगा। साथ ही साथ प्राइस का फिल्टर भी है, कैटेगरी का फिल्टर भी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मार्केट कैप का भी फिल्टर है कि कौन से मार्केट कैप के रेंज के स्टॉक्स आपको चाहिए। एंड दी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्टर इज कि आप सेक्टर स्पेसिफिक फिल्टर्स भी कर सकते हो, कि इफ यू फील कि अगर आज कोई स्पेसिफिक सेक्टर मूव किया या कल कोई स्पेसिफिक सेक्टर मूव करेगा, तो उन सारे सेक्टर में जो कौन से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, अगर आपको वो फिल्टर करना है, तो आप सेक्टर्स का फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो via this or by using this advanced filter. Now what we have is we have the download feature. If you are traveling or if you're using it via your laptop, or if you want to do some further analysis and calculations on the basis of the output of stock, then what you all can do is you can download and download each and every output of any of these scans, and you can save it for yourself and you can do your further analysis and research. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे बेस्ट फीचर पे scans का, that is this historic data. So what we have done is we have been providing previous 7 day output of the respective scan, so which will help all the users, all the traders and investors eventually for the scans, that they will get to backtest the respective scan,
कि फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली सारे 400 प्लस स्कैन्स है, राइट? So you all cannot use and like master on each and every scan, right? So it's better to start slow, better to understand some of these scans and then understand which scan is better for you, better for your strategy, better for your risk appetite, and better for your taking trades positions. So आप इवेंचुअली आप कुछ कुछ स्कैन्स को फिल्टर करोगे। आप अब कोई कोई स्कैन्स आपने सिलेक्ट कर लिया कि नहीं, आपको डेली बेसिस पे ये स्कैन्स देखने हैं या वीकली लेवल पे ये स्कैन्स देखने हैं। अब उस स्कैन्स का आउटपुट को अगर आपको टेस्ट करना है कि वो आउटपुट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसमें जाके बैक पीछे जाके पीछे का डेटा देख सकते हो कि 12 तारीख को उस स्कैन में कौन सा क्या आउटपुट आया था, एंड 12 तारीख के बाद वो सारा स्टॉक कैसा परफॉर्म किया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को सीडीएसएल का देखना है कि सीडीएसएल 12 तारीख को एक अच्छा खासा मूव दिया था, तो 12th इट वाज समवेयर ओवर हियर। सो उस दिन ये स्टॉक क्लोज किया था 2008 पे। आज ये स्टॉक, कल इस स्टॉक ने क्लोजिंग किया 2105 पे। आज ये स्टॉक 2080 पे क्लोज किया। बट सो एंड आज भी ऊपर में 2195 से गया था। तो इफ यू सी एग्जैक्टली इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक पीरियड, दैट इज 7 ट्रेडिंग डेज, ये इस दिन क्लोजिंग हुआ था। अगर आप इस दिन का आउटपुट चेक करते, तो इस दिन का आउटपुट के हिसाब से दे आर एग्जैक्टली 7 ट्रेडिंग डेज। 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 5% तो अभी भी रिटर्न चल ही रहा है। 5 से 10% तक का आपको रिटर्न आपको बनाने का मौका मिलता, राइट? तो आपको आपको इसका स्कैन का एक आउटपुट आपको समझ में आ गया कि हाँ, इसके अंदर जो आउटपुट आ रहा है दैट आउटपुट इज गुड। आपको बैक टेस्टिंग के लिए आप इसमें आसान कर सकते हैं, एंड आप इसमें आगे जाके और फर्दर इंडिकेटर्स या फर्दर स्कैन्स यूज करके आप कुछ कॉम्बो स्कैन बना सकते हो, या एक खाली एक सिंगल स्कैन के बेसिस पर अपना स्टॉक्स और आप आगे और फिल्टर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्टील अथॉरिटी, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 153.30 पे था, 155 पे क्लोजिंग आया था। अब ये 155.30 पे क्लोजिंग आया था, दैट वाज ऑन 12th, विच इज दिस। उसके बाद ये स्टॉक नीचे गया एंड फिर ये स्टॉक आज एक ऊपर मारा है, एंड अभी 165 पे क्लोजिंग, 164 का क्लोजिंग है। सो इफ यू सी देट अभी भी 9% का, 6% का आपको स्ट्रेट अभी अभी भी आपको रिटर्न मिल रहा है। सो वो दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज कि आप कभी भी अगर कोई वीकली लेवल का स्कैन देख रहे हो, सो फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज दैट स्कैन, अगर जो स्टॉक आ रहा है इफ इट इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एंड इफ इट इज नॉट अ न्यूज ओरिएंटेड मूव और लाइक सडन स्पाइक इन मूव, तो सारे स्टॉक्स आपको अच्छा एक रिटर्न देंगे ऑन अ वीकली लेवल। सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लोज क्रॉसिंग लास्ट वीक हाई। तो हम लोग और बाकी स्कैन्स को समझते हैं कि और क्या क्या है। अब फॉर एग्जांपल ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन्स, ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि किसी स्टॉक के अंदर 52 वीक ब्रेकआउट हुआ है, या किसी स्टॉक में अपना ऑल टाइम ब्रेकआउट दिया। जैसे यहाँ पे 52 वीक ब्रेकआउट भी है, 2 ईयर, 5 ईयर ऑल टाइम ब्रेकआउट, ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है कि आज कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, तो आप इस स्कैन के अंदर आ सकते हैं क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई, एंड आपको मिल जाएगा कि ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई का कल ब्रेकआउट दिया था, राइट? तो इससे क्या होगा, लाइक आई सेड, दो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, या इस स्टॉक के अंदर कंटिन्यूड मोमेंटम आएगा, या इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। इवेंचुअली अगर किसी भी स्टॉक के अंदर अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आता है, कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आता है, दैट इट मीन दैट स्टॉक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स, वेरी वेरी टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स। सो इट इज मोर लाइकली कि वो स्टॉक के अंदर फॉर सम परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स और फर्दर अपमूव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तेजस नेटवर्क का चार्ट देखोगे, ठीक है, तो तेजस नेटवर्क के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन अगर आप इसका पूरा अभी लास्ट 2-3 दिन का चार्ट देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मंडे को इस स्टॉक में 20% का मूव दिया था, कल इस स्टॉक ने 15% का मूव दिया, तो इवेंचुअली एक छोटा सा 2% का इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आया है। बट इफ यू सी कि 30%, 35% का मूव 2 दिन में आने के बाद भी इस स्टॉक के अंदर सिर्फ आज 2% का ही प्रॉफिट बुकिंग आया है, विच व्हाट डज इट इम्प्लाई कि ये स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड जब तक ये 940 का लेवल्स नहीं तोड़ता, तब तक ऑब्वियसली ये स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन अब ये तो वो सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने ब्रेकआउट दे दिया। बट अगर आपको ये पहले से फिल्टर करना है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे सकते हैं, राइट, जो दे सकते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो उसको अगर आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग के पास ये सारे स्कैन है: क्लोज एंटरिंग ऑल टाइम हाई जोन, क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन,
close entering weekly high zone. So what is this zone? So what we have done is we have applied the in-house logic of 15%. We have defined a zone of 15%. For example, अगर किसी स्टॉक का अपना ऑल टाइम हाई इज 100 रुपीज, सो 100 रुपीज से 15% आता है 85। तो जैसे ही कोई भी स्टॉक अगर 80, वो जो स्टॉक है वो अगर अपना 85 के ऊपर क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो अपने ऑल टाइम हाई जोन में एंटर कर रहा है, राइट। अब नाउ यू अंडरस्टैंड दी लॉजिक बिहाइंड दिस। अगर कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक, इफ इट विल ब्रेक आउट or if it will give a all-time high breakout, then it will have to cross this zone. It will have to cross from 85 to 100. It will have to give a return of 15%, right? So उस 15% को कैप्चर करने के लिए वो जो 15% का जो बीच का गैप है ना, कि ब्रेकआउट के पहले अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, तो मेरा जो एंट्री पोजीशन होगा वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। Most of the retail traders and investors, what they मिस्टेक इज कि जब स्टॉक बहुत ज्यादा अप मूव आ जाता है किसी स्टॉक के अंदर, कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद अप मूव भी आ गया, एंड दे एंटर एट दैट लेवल, सो इवेंचुअली विच इज वेरी हाई, विच इज वेरी वेरी हाई लेवल, एंड ऑब्वियसली आफ्टर गिविंग अ लाइक आफ्टर गिविंग अ मोमेंटम ऑफ 30 to 40%, 45 50% का एक मूवमेंट के बाद अगर किसी कोई यूजर, अगर कोई रिटेल यूजर उसके अंदर एंटर करते हैं, तो ऑब्वियसली हिट द रिस्पेक्टिव ट्रेडर इन्वेस्टर इज एट अ वेरी रिस्की पोजीशन, क्योंकि वो इतना ज्यादा भाग चुका है ना कि वहां से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इससे बेटर है कि हम लोग अपना जो एंट्री है वो कई काफी अच्छा रखे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन सारे स्टॉक्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो 9 स्टॉक है, ये 9 स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई जोन के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये सारे 9 स्टॉक which are eventually very strong on charts, on technically, so these 9 stocks are very much capable of crossing their all time previous all time high and making a new all time high. So obviously अगर आप इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक में रखोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि ये सारे स्टॉक एक नया हाई बनाए। सो आप अगर अर्ली एक एंट्री ले लोगे तो एज सुन एज दिस स्टॉक गिव्स अ ब्रेकआउट, तो उस ब्रेकआउट के कुछ मूव बाद ही आप अपना एग्जिट भी प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट्स और डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेड होगा वो लेस रिस्की हो जाएगा कंपेयर टू अगर आप किसी स्टॉक के अंदर तब एंटर करते हो जब उस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका होता है, ठीक है। So this was all about the all-time high breakout scans. Now let me all tell you about the RS 55 day scans. For example, relative strength 55 days. Let me all tell you that this model RS 55 is an in-house stockage इंडिकेटर डिराइव्ड बाय विवेक बजाज सर। अगर आप लोग ने विवेक सर का वीडियोस देखा होगा या विवेक सर का कोई भी पोस्ट देखा होगा, then you must have heard him saying his RS 55 model. So this is it, RS 55, relative strength 55 days, in which he compares the strength of stock vis-a-vis its benchmark index and sectoral index over a period of 55 days, which is approximately 3 months, right? सो उनका ये मानना है कि अगर कोई भी स्टॉक अगर अपने बेंचमार्क इंडेक्स या अपने सेक्टोरल इंडेक्स को 3 मंथ्स का गैप पीरियड में, लाइक, अगर आउट परफॉर्म करना चालू कर रहा है, तो दैट स्टॉक इज अ वेरी गुड स्टॉक, या कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट स्टॉक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो आपको ऐसे कई सारे यहाँ पे स्कैन्स मिलेंगे जिसके बेसिस पे आप वो सारे स्टॉक्स फिल्टर कर सकते हो। ऑल्सो इफ यू गाइज, इफ यू सी वीडियोज ऑफ विवेक सर, एंड इन एन नंबर ऑफ वीडियोज ही हैज लाइक सेड इट मल्टीपल टाइम्स दैट वो जो अपना एंट्री एग्जिट पोजीशंस करते हैं उसके पीछे RS 55 इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। दैट इज कि RS 50 with the help of using RS 55 he plans his entry and exit positions in his swing trades and in its positional trades. So आप जाके इस स्कैन को, इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। ऑल्सो आप ये सारे इंडिकेटर्स को किसी भी स्टॉक के चार्ट में प्लॉट भी कर सकते हो जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है एंड ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो, ठीक है। तो ये वो सारे स्टॉक्स है
जो बेंचमार्क इंडेक्स का आउट परफॉर्म करना चालू किए हैं, दैट इज द रीजन कि इनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो जीरो के ऊपर क्रॉस कर गया। फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, कल स्टॉक के अंदर 9.5% का मूव आया था। एंड इफ यू सी आज, आज भी ये स्टॉक, कल का जो क्लोजिंग था 263.50, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में 272.90 तक गया। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% का मूव आज भी आपको सुबह पहले मिलता। सेम गोज विद सेलो वर्ल्ड, कल ये स्टॉक अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ गोइंग अबव जीरो में आया, एंड उसके बाद आज ये स्टॉक में फिर वापस से 6.5% का मूव इसके अंदर मिला है। इफ यू सी एफ एस एन ई कॉमर्स वेंचर्स, कल ये स्टॉक आया स्कैन के अंदर, आज आपको इसके अंदर 2% का मूव मिला है। जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा, ठीक है, ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट से था, ऐसा कुछ खास मूव आया नहीं, बट स्टिल ये स्टॉक अभी एक आउट परफॉर्मिंग जोन में है। तो ऐसे ही करके आप जैसे जैसे स्कैन्स को देखना चालू करोगे, यूज करना चालू करोगे, आपको समझ में आएगा कि ऐसे कई सारे स्कैन्स हैं, नॉट ओनली ऑन दी बुलिश साइड बट ऑल्सो ऑन दी बेयरिश साइड। जैसे अगर आपको स्ट्रेंथ बिलो कोई, ये सारे स्टॉक्स वो सारे स्टॉक्स है जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ जीरो के नीचे चले गए, दैट इज दे हैव स्टार्टेड टू अंडर परफॉर्म। तो इफ यू सी कि ये सारे स्टॉक्स अब बेंच जीरो के नीचे है, दे आर अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एस्टर डीएम चेक करोगे तो वो आज भी 4% डाउन था, राइट। तो आप इसके अंदर शॉर्टकट रेट्स भी ले सकते हो। तो इवेंचुअली आप देखो कि हम लोग यहाँ पे जो भी स्कैन्स है, वॉट एवर स्कैन्स वी हैव इन स्टॉकेज आर ऑन अ बोथ साइड बेसिस, दैट इज यू कैन इवेंचुअली प्लान फॉर बाई ट्रेड्स एज वेल एंड शॉर्ट सेल ट्रेड्स एज वेल। So this was the RS 55 days model. Now we have volume and delivery scans. So मैंने वीकली ब्रेकआउट स्कैन्स का एग्जांपल लिया, तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉल्यूम एंड डिलीवरी दिस वीक। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड द प्राइस एक्शन, द प्राइस स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वॉल्यूम एंड डिलीवरी। सो अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक का स्ट्रेंथ समझना है ना, कि उस स्टॉक में अगर किसी में प्राइस मूवमेंट आ रहा है, एंड इफ दैट प्राइस मूवमेंट इज बैक्ड बाई हेवी वॉल्यूम्स, हेवी वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी, देन यू कैन कंसिडर इट कि हाँ उस स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट आ रहा है, दैट मूवमेंट इज अ जेन्युइन मूवमेंट एंड नॉट अ फेक मूवमेंट, नॉट अ वन टाइम मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का एग्जाम्पल लोगे, तो 2 दिन के अंदर, दैट इज मंडे एंड ट्यूसडे, सिर्फ 2 दिन के अंदर, इस वीक का जो 2 दिन था, उस 2 दिन के अंदर इसके अंदर जो डिलीवरी हुआ, दैट डिलीवरी 6.6x टाइम्स ग्रेटर देन एवरेज डिलीवरी ऑफ प्रीवियस 5 वीक्स। सेम वे में इसका जो ट्रेडेड क्वांटिटी था इस 2 दिन का कंबाइंड, दैट वाज 9.5x ग्रेटर देन द एवरेज ट्रेडेड क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस 5 वीक्स। तो इससे क्या समझ में आता है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ तो मोमेंटम हुआ है, जिसके वजह से पीपल, जो इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है एंड जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड प्रीवियस वीक के नाम ये स्टॉक 20% नीचे है। फॉर एग्जाम्पल तेजस नेटवर्क्स, तेजस नेटवर्क्स के अंदर भी डिलीवरी भी काफी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम भी काफी अच्छा इंक्रीज हुआ, एंड वो ऑलरेडी 2 दिन के अंदर अपने प्रीवियस वीक से 40% इंक्रीज पे है, 12% इंक्रीज पे है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स है जिसके अंदर मोमेंटम बहुत हाई है, इधर अ बुलिश मोमेंटम और अ बेरिश मोमेंटम। सो आप इसके थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स के अंदर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी बहुत हाई है। अगर आपको ये चेक करना है कि आज कौन से स्टॉक थे जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिलीवरी हुआ, तो आप हाई डिलीवरी परसेंटेज जाके चेक कर सकते हो कि कल फॉर एग्जाम्पल 23 तारीख को सन फार्मा के अंदर 97.9% का डिलीवरी उठा था, विच मीन्स कि ये जो स्पार्क कंपनी है सन फार्मा, इसके अंदर 97.9% of the people have bought the shares and taken back home. That is, they have taken it for delivery. Now let's come to technical scans. So let me all tell you कि market में there are n number of technical indicators. ठीक है, there मतलब, and there obviously everyone has their own logic, everyone has their own interpretation of all indicators, everyone has their own strategies. So for any trader, if you see, you won't see any trader or investor using n number of indicators, using multiple indicators. All they do is they select their own indicator that feel it is very good for them, very good for their strategy, and they are able to use it and interpret it well. तो इसीलिए what we have done is we have provided almost all the major indicators available in the market, and still अगर आप लोगों को लगता है कि कोई भी ऐसा इंडिकेटर है
जो आप लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड वो काम का है, एंड इफ इट इज नॉट अवेलेबल ऑन स्टॉकेज, then please do reach out to us via support team or WhatsApp or social media, and do raise your request कि आप लोग को ऐसा कुछ टेक्निकल इंडिकेटर चाहिए, एंड विल श्योरली लुक इनटू इट कि हम लोग उस इंडिकेटर को कैसे ऐड कर सके हम लोग के स्टॉकेज प्लेटफॉर्म पे फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू ऑल। तो अभी हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एसएमए से, वेरी कॉमन एंड वेरी कॉमन इंडिकेटर। तो अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ, व्हाट इज एसएमए? एसएमए इज सिंपल मूविंग एवरेज। इफ आई से 50 एसएमए, सो व्हाट डज 50 एसएमए मीन, अगर किसी लोगों को नहीं पता है, सो 50 एसएमए का मतलब है किसी भी स्टॉक का 50 दिन का, 50 ट्रेडिंग डेज का क्लोजिंग प्राइस का एवरेज। तो एसएमए जितने भी, ये सब जितने भी मूविंग एवरेजेस, ये क्या है, उस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर 50 डेज का एसएमए, अगर आप डेली 50 डेज के एसएमए को प्लॉट करोगे, अब देखोगे कि डेली एसएमए बढ़ते जा रहा है, मतलब वो स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में है। अगर किसी का 50 एसएमए नीचे गिरते जा रहा है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म में नीचे गिर रहा है, तो वो एक नेगेटिव ट्रेंड में, एक बेरिश ट्रेंड में। तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स। सो एसएमए का दो बहुत पावरफुल स्कैन्स है, बेसिकली उसको गोल्डन क्रॉसओवर एंड डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। आप या तो उसको 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो ले सकते हो, 200 एसएमए फ्रॉम बिलो अबव, या 50 एसएमए फ्रॉम 100 भी कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो, इस स्कैन को गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है। व्हाट डू व्हाई गोल्डन क्रॉसओवर? क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर है। सो 50 एसएमए इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 मंथ्स, 200 एसएमए इज अप्रोक्सीमेटली 10 मंथ्स। सो अगर आपको इसका इसका इंटरप्रेट और इसको आपको इसका वैल्यू समझना, तो इसके लिए क्लियर कट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब भी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, इट विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एज वेल। जब भी कोई भी छोटा एसएमए का वैल्यू किसी बड़ा एसएमए का वैल्यू, फॉर एग्जांपल इन आर केस एसएमए 50 एंड एसएमए 200, अगर एसएमए 50 का वैल्यू या लाइन एसएमए 200 को नीचे से क्रॉस करता है, विच इज द केस इन दिस स्कैन, 50 एसएमए क्रॉसिंग 200 एसएमए फ्रॉम बिलो। आपको यहाँ पे क्लियरली इसका आइकन में भी दिखेगा और नाम में भी दिखेगा कि 50 एसएमए 200 एसएमए को नीचे से क्रॉस कर रहा है, सो इट इज अ बुलिश स्कैन। तो आपको इससे क्या समझ में आएगा कि जब भी, ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे, एट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट एक 50 एसएमए का क्रॉस ओवर हुआ था, 50 एसएमए क्रॉस 200 एसएमए फ्रॉम बिलो। उसके बाद आप देख सकते हो कि इट वाज इन 7 दिसंबर 20, एट दैट टाइम दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 340 रुपीज, और उसके बाद से वो वापस से कभी नीचे क्रॉस ओवर आया ही नहीं। एंड वो स्टॉक यहाँ पे एट दिस पॉइंट, ये स्टॉक के अंदर ये क्रॉसओवर आया, दैट इज बेरिश क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, जब 50 एसएमए ने 200 एसएमए को ऊपर से क्रॉस किया। सो एट दिस पॉइंट इट वाज एट 1750। सो इफ यू सी, यू विल क्लियरली सी कि आपको 500 एक्स का रिटर्न मिला, 5x का रिटर्न मिला विद इन अ स्पैन ऑफ, दैट इज 3.5 ईयर्स आई गेस, 3.5 ईयर्स। सो ऑब्वियसली ये जो सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं या ये मूविंग एवरेज, ये सब बहुत ज्यादा यूजफुल होता है अगर इसको सही ढंग से यूज किया जाए, सही टाइम पे यूज किया जाए। ठीक है। तो ये स्कैन में इसीलिए आया क्योंकि अब इस स्टॉक के अंदर वापस से 50 एसएमए इसके 200 एसएमए को नीचे से क्रॉस कर रहा है अब, विच मीन्स कि अब ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। अब ये स्टॉक कितना आगे बुलिश ट्रेंड में जाएगा, कि बहुत छोटा बुलिश ट्रेंड होगा, वो आपको इवेंचुअली समझ में आना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा बेरिश क्रॉसओवर आया था, बट इट वाज नॉट दैट लास्टिंग, तो स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था, ज्यादा उसके अंदर ऊपर नीचे का मूव नहीं आया। राइट। तो दिस वाज द सिंपल मूविंग एवरेज। सेम वे वी हैव एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सीसीआई, आरएसआई। लेट मी टेल अगेन, जैसे जस्ट बिकॉज आई टोल्ड आरएस 55, so relative strength index scan is also one of the favorite scans of favorite indicators of Vivek Bajaj sir, and he uses it almost like for all his talks. And like I said, for RS55, RSI is also a very important indicator and widely followed by a lot of people in the market. And he uses this combination of RSI and RS55 in analyzing his trades, in deciding the entry and exit levels for all his stocks. So
आरएसआई भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इन डिटरमाइनिंग कि उस स्टॉक में का जो ट्रेंड है वो कैसा ट्रेंड है, मोमेंटम जो है उस स्टॉक के अंदर वो हाउ इज इट, इट इज अ बुलिश मोमेंटम, ट्रेंडिंग मोमेंटम, कि वो स्टॉक अगर ओवरबॉट जोन में, अगर आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में, सो यू कैन फिल्टर आउट दो स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ आरएसआई सीसीआई, या वहां पे चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरएसआई 50 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, मतलब दैट स्टॉक, उस स्टॉक का रेटिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, एंड इसीलिए वो स्टॉक एक ट्रेंडिंग उसके अंदर जा रहा है। सो दिस वाज ऑल फॉर दी आरएसआई स्कैन। तो वैसे करके दे आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल स्कैन्स वीकली। इन दिस लेटेस्ट रिलीज व्हाट वी हैव डन इज, हम लोग ने वीकली स्कैन्स भी लॉन्च किया है, दैट इज वीकली रेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कैन्स, वीकली पैराबोलिक स्टार स्कैन्स, वीकली सुपर ट्रेंड स्कैन्स। सो ये आपको वीकली लेवल पे आपको स्टॉक फिल्टर करके देगा, विच इज मोर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड लॉन्ग पोजिशनल इन्वेस्टर्स, के अगर आपको लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड्स लेना है तो उसके लिए आपको मदद करेगा ये सारे स्कैन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सुपर ट्रेंड का समझना है, सो व्हाट डज सुपर ट्रेंड से, सुपर ट्रेंड हेल्प्स इन कैचिंग रिवर्सल ऑफ ट्रेंड्स, कि अगर किसी स्टॉक के अंदर बुलिश से बेरिश रिवर्सल आ रहा है, या बेरिश से बुलिश रिवर्सल आ रहा है, बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश रिवर्सल आ रहा है, तो उन सारे रिवर्सल ट्रेंड को कैप्चर करने में सुपर ट्रेंड पैराबोलिक्स का मदद करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोग एग्जांपल दिखाऊं, हाउ विल इट हेल्प, फॉर एग्जांपल हम लोग भारत डायनेमिक्स का बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी 1 ईयर चार्ट ऑफ भारत डायनेमिक्स, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये स्टॉक, जब जब ये जो ग्रीन लाइन है, दिस ग्रीन लाइन इफ इट इज ट्रेडिंग बिलो, इफ इट इज प्लॉटेड बिलो द प्राइस ऑफ द स्टॉक, दैट मीन्स कि दैट स्टॉक इज इन अ बुलिश जोन। एज सून एज दिस ग्रीन लाइन चेंजेस टू रेड, दैट इज एट दिस पॉइंट, दिस स्टॉक हैज एंटर्ड इनटू अ सेल जोन, इसलिए इसमें सेल सिग्नल आ गया है। तो इफ यू सी कि यहाँ से वो स्टॉक फिर नीचे ही गिरा है, राइट, फ्रॉम 1115 से वो स्टॉक सीधा 969 आ गया। एंड देन अगेन एट दिस पॉइंट स्टॉक के अंदर वापस एक बाइंग सिग्नल आया एट द पॉइंट ऑफ 1040 रुपीज। उसके बाद वो सिग्नल सीधा जाके यहाँ पे एंड हुआ है 19 रुपये पे। So आपको क्लियर कट एक अराउंड अराउंड आपको 70-80% का आपको रिटर्न मिला, 90% का आपको क्लियर कट रिटर्न मिला सारी सुपर ट्रेंड से, जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग दी चेंज इन ट्रेंड रिवर्सल। आप क्लियरली देख सकते हो अभी जैसे ये स्टॉक कंसोलिडेटिंग फेज के अंदर है, तो अभी इसके अंदर एक सेल सिग्नल ही था, अभी वापस से स्टॉक के अंदर एक बाई सिग्नल आया, दैट वाज यस्टरडे। अगर उसी स्टॉक में अगर आप देखे होते कि इस स्टॉक के अंदर कल एक बाइक सिग्नल आया एज पर सुपर ट्रेंड, एंड आज ये स्टॉक फिर 6.5% ऊपर है ऑलरेडी। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि हाँ, ये जो सारे स्कैन्स है, सुपर ट्रेंड हो गए और पैराबोलिक सार, ये आपको ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, बेरिश से बुलिश या बुलिश से बेरिश। सेम वे में इफ यू चेक द वीकली सुपर ट्रेंड स्कैन्स, तो ये आपको, ये जो आपको लेवल देंगे ये और फॉर और ज्यादा लॉन्ग टर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये स्टॉक के अंदर इस करेंट वीक के अंदर एक बुलिश रिवर्सल आया, सो लेट्स सी कि हाउ द स्टॉक परफॉर्म्स। अगर आपको लेवल देखना है कि कैसे ये परफॉर्म करता है, सो एट दिस पॉइंट देयर वाज अ ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, एंड उसके बाद देख सकते हो कि स्टॉक कैसे नीचे गया, एंड इट वाज कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्निकल स्कैन्स। नाउ वी हैव फंडामेंटल स्कैन्स। तो जैसे टेक्निकल स्कैन्स, देखिए टेक्निकल स्कैन्स के अंदर क्या है ना कि टेक्निकल स्कैन्स जितने भी इंडिकेटर्स है ना, सारे के सारे इंडिकेटर्स सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स के ऊपर बने हुए हैं, दैट इज प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज, राइट, ओपन हाई लो क्लोज, मैक्स मैक्स वॉल्यूम। बट फंडामेंटल स्कैन्स के अंदर क्या है, देयर आर एन नंबर ऑफ fundamental parameters. So what we have done is we have categorized those parameters into different subcategories: profitability scans, turnover scans, solvency scans, cash flow scans, valuation, dividend scans. So let's understand some of those scans. प्रॉफिटेबिलिटी स्कैन, तो इसके अंदर आपको वो सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप उस कंपनीज का जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन से स्टॉक्स के अंदर हाई आरओई है, किसका कौन से स्टॉक से आरओई इंक्रीज हो रहा है। या फॉर एग्जांपल ये हम लोग को लास्ट लास्ट रिलीज में हम लोग ने 7 पावरफुल स्कैन्स लॉन्च किए थे, जिसके अंदर व्हाट वी डू इज कि हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो
क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर या एनुअल रिजल्ट्स के अंदर अपना आज तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करे पिछले 10 साल में। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी इसके अंदर 2024-3 का आ चुका, तो जियो नहीं देखते चूंकि जियो 2 साल पहले ही रिलीज हुआ है, आईपीओ में आया है। तो जैसे वैसे हम लोग एमएमटीसी का एग्जांपल लेते हैं। इफ यू सी एमएमटीसी, एमएमटीसी में लास्ट 2019-3 के अंदर, लास्ट इन 2019-3 दे रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 108.72 करोड़। एंड उसके बाद 2021-22 3 साल में उन्होंने इसको, इस प्रॉफिट को दे वर नॉट एबल टू क्रॉस इट। Now then, in 2023, they managed to report a profit of 1562 crores, which is a straight away 14x growth. मतलब इस स्टॉक के अंदर पक्का कुछ ना कुछ उस साल के अंदर चेंज इन बिजनेस या ऑपरेशंस हुआ होगा, या किसी स्टॉक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला होगा, या उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए होंगे जिसके वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट था वो 14x से इंक्रीज कर गया विद इन अ स्पैन ऑफ 4 years। तो अगर आप स्टॉक का प्राइस चार्ट देखोगे आपको इवेंचुअली समझ में आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड 1 ईयर का चार्ट। तो वो स्टॉक ऑब्वियसली यहाँ पे करीब मई अप्रैल के टाइम पे उस स्टॉक ने अपना एनुअल रिजल्ट रिलीज किया होगा, बट दैट वाज अराउंड एट दिस टाइम, एंड इट वाज ट्रेडिंग एट 30 रुपीज एट देन। एंड उसके बाद वो स्टॉक ऑब्वियसली काफी दिन तक कंसिडर करके दैट स्टॉक मेड अ हाई ऑफ अराउंड 98 रुपीज विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। इफ यू सी, आपको मोर देन 3x का रिटर्न आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर आपको मिला। आई एम नॉट सेइंग कि खाली एक फंडामेंटल, खाली जस्ट बिकॉज कि किसी स्टॉक ने अपना आज तक हाईएस्ट नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया तो वो एक साल में 3x का रिटर्न दे सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि खाली टेक्निकली जरूरी नहीं कि आप स्टॉक्स फिल्टर करो, आप फंडामेंटली भी यू कैन फिल्टर आउट गुड फंडामेंटल स्टॉक्स, एंड फिर आप उसमें टेक्निकल लेवल्स देख के आप अपना एंट्री एग्जिट उसके अंदर प्लान कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट एट दैट वेरी मोमेंट दे माइट बी टेक्निकली वीक, कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ चुका है तो वो अब नीचे आना है, उसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, या वो ओवरबॉट जोन में है तो उसके अंदर सेलिंग आ सकता है। और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, क्योंकि दे टेंड टू बाई एट हायर लेवल्स, बिकॉज की मार्केट के अंदर वो स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुका है। एंड व्हेन दे बाई, they see that there's a decline in prices। तो इसीलिए एंट्री एंड एग्जिट प्लान करने के लिए इफ यू सी टेक्निकली इट इज गुड, बट आप फंडामेंटली भी काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हो। क्योंकि अगर किसी भी स्टॉक के अंदर का फंडामेंटल में इस कदर का मूवमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सो या तो वो वन टाइम ग्रोथ होगा, या तो वो हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यूड ग्रोथ वो स्टॉक दिखाए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो बेसिकली टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरी इज फॉर दो स्टॉक्स जिन स्टॉक्स के अंदर लास्ट क्वार्टर के अंदर, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के अंदर लॉस था, एंड करेंट क्वार्टर के अंदर उनमें प्रॉफिट आ गया। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, दिसंबर के अंदर लास्ट ईयर ये कंपनी ने एक लॉस रिपोर्ट किया था 2 करोड़ का। इस साल इसने 85 करोड़ का प्रॉफिट डिनोट किया। दैट इज 43x जंप, मतलब दैट इज एक्सट्रीमली ग्रेट। तो या तो कुछ ना कुछ हुआ होगा इस स्टॉक के अंदर जिसकी वजह से इतना अच्छा खासा मूवमेंट आया। Same way we have quarterly EBITDA, annual EBITDA, consistently increasing quarterly EPS, decreasing quarterly EPS, PAT margins, EBITDA margins। तो आप लोग ऑब्वियसली सारी स्कैन्स में जाके चेक कर सकते हो एंड देख सकते हो कि किसके अंदर क्या कैसा मूवमेंट आ रहा है, एंड इवेंचुअली आप और फंडामेंटल में स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। देन वी हैव डिविडेंड स्कैन्स। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो खाली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हर साल कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टीसीएस हैज पेड डिविडेंड 59 टाइम्स सिंस 2011। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो डिविडेंड बहुत ज्यादा पे करते हैं, दैट इज उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। आपको ये स्टॉक्स का लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली अगर आपको शेयर होल्डिंग स्कैन देखना है, बाई शेयर होल्डिंग स्कैन आई मीन कि कौन से स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एफ आईज अपना होल्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, और एम एफ म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज और डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। सो वो सारे डेटा आपको इस कैटेगरी ऑफ स्कैन से मिल जाएंगे। So this was all fundamental scans. Now we have futures and options scans, strike price option scans. This is all related to FNO data. So let's not go over there, Abhi. Now we have candlestick scans. So like price scan is very important. Price action scans is very important. Technical is very important. Like the all these scans is very important. Same way, candlestick scans are also very important. That means कि जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, जो कैंडल स्टिक फॉर्म होता है ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस पे, तो वो जो पैटर्न ड्रॉ करता है ना, वो जो कैंडल का शेप है,
राइट। वो शेप काफी कुछ ज्यादा डिनोट करता है अबाउट द प्राइस एक्शन, अबाउट द बाइंग एंड सेलिंग बिहेवियर इन द मार्केट्स, अबाउट हाउ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर व्यूइंग दैट स्टॉक इन दैट रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड। वो कैंडल स्टिक का सिर्फ शेप से बताना बहुत मतलब इट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट मारुबोजू इज अ क्लियर कट सिंपल ग्रीन कैंडल जिसमें ऊपर नीचे कोई बॉडी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वेलस्पन लिविंग, इसके अंदर आप देखोगे इट इज अ व्हाइट मारुबोजू, दैट इज एकदम क्लियर कट लॉन्ग ग्रीन कैंडल है, जिसमें इट व्हाट डज इट मीन कि इसके अंदर सिर्फ बायर्स ही थे, देयर वाज नो सेलर्स, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया, इट वाज अ क्लियर कट ग्रीन कैंडल। ऑब्वियसली उसके बाद आज एक छोटा सा प्रॉफिट मूव आया है, लेकिन इफ यू सी कि ये स्टॉक अभी भी काफी ज्यादा अभी स्ट्रांग है। सो दिस वे देयर आर मल्टीपल रिवर्सल रिवर्सल पैटर्न एज वेल, बुलिश रिवर्सल, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, जिसके थ्रू आप और फिल्टर कर सकते हो सारे स्टॉक्स। सो ऑब्वियसली लाइक आई सेड, there are many indicators available in the market, there are many scans available in the market, but it is not possible for any one investor or trader to ace in each and every scan, to ace or to use each and every scan. Also time also won't permit and the effort won't be regardless, because आप देखोगे कई सारे इंडिकेटर कुछ बोल रहे हैं, कुछ इंडिकेटर कुछ स्कैन कुछ बोल रहे हो, सो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इट्स बेटर टू फाइंड आउट योर ओन स्कैन कि विच स्कैन विल हेल्प यू, कौन सा स्कैन आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है, कौन सा स्कैन का जो आउटपुट है आप उसको बेटर फाइंड कर रहे हो, आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैच कर रहा है, एंड देन इवेंचुअली यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दो स्कैन्स। So that was all for the scans part. So let's have a short Q&A session. Then we will move ahead with the my combination scans. और विशाल जी, इन दी एंड हम लोग समझेंगे कि हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक को कैसे यूज करें। और विशाल जी, सेक्टर एनालिटिक्स एंड सेक्टर एनालिसिस का एक अलग से सेशन होता है, प्लीज डू रिकॉर्ड दैट, प्लीज डू वॉच दैट। और नीरव जी, वी हैव स्कैन्स प्रीवियस डे ब्रेकआउट जिसके अंदर ओपन है एट हाई एंड ओपन एट लो, जो पैरामीटर होता है उसके थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो। वंदना जी, प्लीज अगर आप बता पाएंगे ये स्क्रीन कैसे आई, ये आप कौन सा स्क्रीन का बात कर रहे हो, देन प्लीज लेट अस नो। जिनाग जी, आपको सपोर्ट में रीच करना पड़ेगा, अगर आपको इस वीडियो को ऑफलाइन रीच करना है आपको रिकॉर्डिंग सेशंस मिल जाएंगी। आशीष शेख जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एचओडीएम के साथ क्या है, हो सकता है कि ये डेटा आज मेरा यूडी पे अपडेट हो जाएगा डेटा। आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं एक बार इस डेटा को चेक करके एक बार मैं इसको चेक करा देता हूँ। थैंक यू फॉर दैट। और सुशांतो जी, रेडियो स्ट्रेंथ स्कैन ऑलरेडी एडेड है स्कैन सेक्शन के अंदर, आप प्राइस सेक्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हो। राकेश जी, यहाँ पे जो मैंने चार्ट दिखाया था दैट वाज अ वन डे चार्ट, बट ऑब्वियसली आप जाके स्टॉकेज में वीकली चार्ट से मंथली चार्ट्स भी है, आप जो चार्ट्स आपको बेटर समझ में आते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो चार्ट चेंज कर सकते हो। मुकेश जी, पैराबोलिक सार एग्जैक्टली सुपर के जैसे काम करता है, इट इज एग्जैक्टली डेट, वो रिवर्सल के तौर पे ही काम करता है, वो रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में ही काम करता है जैसे सुपर ट्रेंड काम करता है। आप पैराबोलिक सागा आप जाके आप चेक कर सकते हो आई सेक्शन, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड अगर लास्ट में टाइम बचा देन ऑब्वियसली आई विल कंटिन्यू विद पैराबोलिक सार। और रमेश कुमार जी, इचीमोकू स्कैन वीकली के लिए आपका रिक्वेस्ट नोट डाउन कर लिया है, एंड आरएसएस स्कैन के वीकली ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लीज जाके आप चेक कर सकते हो। और ट्रेड मार्केट जी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट स्ट्राइक रेट आर यू टेलिंग अबाउट इंडिकेटर। और मुकेश जी, अभी हम लोग कॉम्बिनेशन स्कैन्स के अंदर जाएंगे। विशाल जी, देयर मल्टीपल
कॉमन फंडामेंटल स्कैन्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एबिटा मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, किसी कंपनी का डेट डिक्रीज हो रहा है, कोई कंपनी अपना डेट रिपे किए जा रही है, या किसी कंपनी का जो प्लेज है वो कमती हो जा रहा है, देयर एन नंबर ऑफ फंडामेंटल स्कैन्स। आप अगर जाके देखोगे फंडामेंटल सेक्शन में, तो मोस्ट ऑफ द स्कैन्स आर वेरी कॉमन। उसमें से कुछ कुछ बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमली लॉजिक डिफाइंड स्कैन्स है, तो आपको आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। वरना जी स्टॉक सर्च करके आपको उसके अंदर चार्ट पैटर्न्स प्लॉट करना पड़ेगा। अगर आप चार्ट पैटर्न्स का बात कर रहे हो, अगर आप नॉर्मल पैटर्न का बात कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर का बात कर रहे हो, तब आप किसी भी स्टॉक के अंदर जाके आप एच चार्ट के अंदर जाके उस इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हो। आशुतोष गुप्ता जी, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे, अब वहां पे जाके RS 55 एंड RSI above 50 का स्कैन आप कंबाइन कर सकते हो। वंदना जी, आप किसी भी स्टॉक के अंदर जाओगे तो हर स्टॉक के अंदर एक स्कैन टैब करके अलग से है, जिसके अंदर वो स्टॉक कौन कौन से स्कैन के अंदर फंसा है, आया है, वो आपको सारा का सारा स्कैन का लिस्ट मिल जाएगा वहीं पे। यस, मल्लिकार्जुना मूर्ति जी, आप फंडामेंटल टेक्निकल स्कैन साथ में कंबाइन कर सकते हो। शांतनु जी, आपका रिक्वेस्ट हम लोगों ने नोट कर लिया, विल इवेंचुअली सी टू इट। सो लेट्स मूव अहेड विद द माइक कॉम्बिनेशन स्कैन्स। विशाल जी, आप सपोर्टिंग को रीच आउट कर सकते हो, सेक्टर रोटेशन का जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगा। हर सेशन रिकॉर्ड होता था, प्लीज डू रीच आउट टू दी सपोर्ट टीम, यू विल इवेंचुअली गेट दी रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन। सो अब हम लोग माइक कॉम्बिनेशन स्कैन्स में आते हैं। सो उसके पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूं, ये जो है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये विवेक सर का कॉम्बिनेशन स्कैन्स का लिस्ट है, जिसके अंदर फीपा, सीपा, केपेक्स अर्निंग प्राइस एक्शन, पावर ऑफ RS स्टॉक्स, टाइगर स्टॉक्स, ये सारे के सारे आपको कॉम्बिनेशन स्कैन है, ये आपको अभी अभी आपको मिल जाएगा। ये वाला जो कॉम्बिनेशन स्कैन है, दिस कॉम्बिनेशन PDF विल बी शेयर्ड इन द चैट। एंड अभी हम लोग इसी में से कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना के समझते हैं कि हाउ इज इट ऑल अबाउट। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स मेक द कॉम्बिनेशन स्कैन फीपा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आप लोग को माई स्टॉकेज में जाना है, आपको माई कॉम्बिनेशन स्कैन में जाना है, एंड देन जैसे यहाँ पे फीपा ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग वापस से फीपा स्कैन बनाते हैं, FIPA, फीपा 1। तो ये फीपा स्कैन बन गया, ये आपका फीपा कॉम्बिनेशन स्कैन बन गया। मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग टोटल में 20 कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हो, एंड हर एक कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर एट अ मैक्स ऑफ 10 इंडिविजुअल स्कैन ऐड कर सकते हो। सो वाई ओनली 10? बिकॉज ये हम लोग का सालों का रिसर्च से हम लोगों को पता चला कि 10 इज अ वेरी गुड नंबर व्हेन यू आर कंबाइनिंग एनी स्क्रीनर और इंडिकेटर, क्योंकि कई बार कई ज्यादा इंडिकेटर्स मिलाने से क्या होती है, वो जो डेटा आती है उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता। तो इसलिए हम लोग 10 स्कैन्स का बात कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो स्कैन्स ऐड करने मांग रहे हैं, दैट इज फीपा। सो आप लोग यहाँ पे कोई भी स्कैन चेक कर सकते हो, जैसे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज यू ऑल नीड टू क्लिक ऑन ऐड स्कैन, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर आपको पता है कि वो स्कैन कहाँ पे है, तब इवेंचुअली आप जाके चेक कर सकते हो, जैसे क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। तो मेरे को पता है ये 52 वीक ब्रेकआउट के अंदर क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन में है, तो इसको मैंने स्टार मार्क कर दिया एंड दिस स्कैन गॉट एडेड। फिर उसका जो बाकी स्कैन है, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव, आप इसको सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर आता है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर,
quarterly EBITDA growth year on year, high increase in quarterly sales year on year, high increase in quarterly sales year on year. ये 6 स्कैम हम लोग ने ऐड कर दिया एंड है लास्ट कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस। कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशंस हम लोग ने ये भी ऐड कर दिया। तो ये सातों स्कैन ऐड हो गए। सो हम लोग का अब जो फीपा कॉम्बिनेशन स्कैन है वो रेडी है। अब बिफोर मूविंग फर्दर टू द आउटपुट, हम लोग पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सारे स्कैन्स क्यों ऐड किए गए हैं। सो सबसे पहले लाइक आई सेड, इस स्कैन का नाम क्या है, फीपा, फिनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन। तो इसका ये मतलब है कि ये वो उन सारे स्टॉक्स को फिल्टर करेगा जो जिनके अंदर उनका जो फिनेंशियल्स है वो इम्प्रूव हो रहा है, और साथ ही साथ वो स्टॉक्स सारे टेक्निकली बहुत साउंड पोजीशन पे है, टेक्निकली स्ट्रांग है। ठीक है। अगर आप लोग कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो ना, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। यू नीड टू नो योर ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दैट कॉम्बिनेशन स्कैन। अगर आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए अगर आप कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो एंड उसके अंदर अगर आप वीकली आरएसआई ऐड करोगे या वीकली पैराबोलिक स्टार ऐड करोगे, सो वो एक गलत इंडिकेटर हो जाएगा। क्योंकि वो तो आप शॉर्ट टर्म में इंट्राडे स्कैन बना रहे हो ना। वीकली आरएसआई या वीकली पैराबोलिक स्टार ये सब जो स्कैन है ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि ये वीकली स्कैन है, राइट। अगर आप इंट्राडे के अंदर फंडामेंटल स्कैन्स ऐड करोगे, सो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग दैट कॉम्बिनेशन स्कैन एंड व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स यू वांट टू फिल्टर। सो इवेंचुअली अगर मैं इस फिनेंशियल इंप्रूवमेंट विद प्राइस एक्शन को अगर मैं ब्रेक करूं, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात करते हैं। क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। अगर इसका मतलब है कि वो सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर रहा है जो सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई के 15% जोन के अंदर है। सो विच क्लियरली इंडिकेट्स, एंड इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस, कि जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई जोन के 52 वीक हाई प्राइस के 15% के रेंज में है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो सारे स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग है टेक्निकली, राइट। क्योंकि वो अपने हाई लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। अब हो सकता है कि वो एक अपना 52 वीक हाई बना के नीचे आ गया है, नीचे आ रहा है, या हो सकता है कि वो अपने एक नया 52 वीक हाई बनाने जा रहा है। बट जब तक वो स्टॉक अपने 52 वीक हाई जोन में है, इट मीन्स कि वो सारे के सारे स्टॉक्स अभी बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली स्ट्रांग है। ठीक है। तो इससे प्राइस एक्शन वाला चीज मेरा फिल्टर हो गया। अब नाउ व्हाट वी वांट टू फोकस ऑन, वी वांट टू फोकस ऑन फिनेंशियल इंप्रूवमेंट। सो उसको कैसे करें? सो फॉर दैट वी हैव फॉर एग्जांपल टू स्कैन्स, इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी, इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो व्हाट इज इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी? आरओई। रिटर्न ऑन इक्विटी इज कि शेयर किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको जो रिटर्न मिल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इंप्रूव हो रहा है। 5% से 8% हुआ, 8% से 10% हुआ, इट इज इंक्रीजिंग, इंप्रूव हुआ है पहले से। अगर आप एरो भी देखोगे तो एरो आपको अपसाइड एरो दिखेगा, मीन्स विच मीन्स कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो रिटर्न दे रही है उसको साल बाय साल उसको बढ़ाई जा रही है। दैट इज वो ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट मेरे को पता चलता है। अब second scan is improved return on capital employed. What does it mean? ROCE. It means that company, whatever company is investing in its business, कंपनी जो अपने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, जो कैपिटल एम्प्लॉय कर रही है, उसके ऊपर कंपनी क्या रिटर्न निकाल रही है? 10% निकाल रही है, 15% निकाल रही है, 40% निकाल रही है। व्हाट रिटर्न इज जनरेटिंग ऑन इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट? सो इफ दैट इज इंप्रूविंग, विच मीन्स कि कंपनी जो पैसा लगा रही है अपने बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस से वो जो रिटर्न निकाली है वो बेटर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। विच जस्टिफाइज कि कंपनी जो रुपए लगा रही है वो सही जगह पे लगा रही है। यू विल सी मेनी टाइम्स की कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है बट कंपनी को वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। मे बी दैट प्रोजेक्ट इज बैड, मे बी वो जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो खराब था जिसकी वजह से प्राइस भी नीचे गिरने लग जाता। बट अगर कोई भी कंपनी, इफ एनी कंपनी इज इन्वेस्टिंग in some project or some operation, and if that operation is helping that company to improve better returns, to generate better returns, then obviously that company is in a better position. ठीक है। तो ये हो गया कंपनी का स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल बिजनेस पे, एक्चुअल ऑपरेशंस पे। सो यू मस्ट हैव हर्ड, आप लोगों ने कई बार सुना होगा टॉप लाइन नंबर्स, बॉटम लाइन नंबर्स, मिडिल ऑर्डर नंबर्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो उस तीन चीज को कैप्चर करने के लिए व्हाट वी हैव इज सेल्स, क्वार्टरली सेल्स। क्वार्टरली सेल्स इज द टॉप लाइन नंबर, सेल्स को टॉप लाइन नंबर बोला जाता है। देन वी हैव क्वार्टरली एबिटा विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है।
नाउ वी हैव क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विच इज द बॉटम लाइन नंबर. सो व्हाई वी हैव टेकन दीज थ्री. ये तीन नंबर अगर इंप्रूव हो रहा है तो मुझे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि इस कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, कंपनी धंधा भी अच्छा कर रही है. उस कंपनी से जो धंधा से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उस जो कंपनी का मेन बिजनेस है उससे कंपनी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मेन प्रॉफिट है उसको भी अच्छा जनरेट कर रही है. एंड एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज कंपनी अपना बाकी सारा खर्चा निकालने के बाद, बाकी सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है. तो इससे क्लियर कट मेरे को समझ में आता है कि कंपनी अपना टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड बॉटम लाइन तीनों को इंक्रीज कर रही है, कंपनी का तीनों में इंक्रीज हुआ है. विच इज अ वेरी क्लियर कट एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. क्योंकि आप कई बार देखोगे, इट इज अ वेरी गुड साइन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल. यू विल सी कई बार कि कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है बट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा. इसका मतलब क्या है कि कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हाई है. लेकिन अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है बट सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि कंपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाने के लिए मिस रिपोर्टिंग कर रही है, क्वालिटी रिपोर्टिंग कर रही है. या हो सकता है कि कंपनी का पहले का प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस था जो अभी कवर अप हो चुका है, जिसके वजह से उसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सिनेरियोज पॉसिबल लीगली एंड लॉजिकली. बट अगर हम लोग को बेस्ट सिनेरियोज फिल्टर आउट करना है, दैट इज द सेफेस्ट सिनेरियोज, देन दिस सिनेरियो इज द बेस्ट सिनेरियो कि किसी भी कंपनी का उसका जो क्वार्टरली सेल्स है, एबिटा है एंड नेट प्रॉफिट है, वो तीनों अपने ईयर ऑन ईयर लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. अब चाहे वो कितना भी परसेंटेज हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग ऑन दी नंबर्स, बट अगर तीनों इंक्रीज हो रहा है सो इट इज अ वेरी क्लियर कट सिग्नल कि वो कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो रहा है, इट इज इंप्रूविंग डे बाई डे. Now, the last thing, consistent cash from operations. So, which is also very important कि कोई भी कंपनी अगर कैश जनरेट कर रही है, so if company is able to generate consistent cash, so it is a very good signal कि कंपनी अपना आगे बिजनेस को इंकॉर्पोरेट कर पाएगी, आगे और बिजनेस को बढ़ा पाएगी एंड कंपनी कैन मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स वर्किंग कैपिटल एंड इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. बिकॉज अगर कोई भी कंपनी, इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट एनफ कैश फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, देन वो कंपनी आगे जाके अपने ऑपरेशन को कैसे कंटिन्यू करेगी. आगे ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे तो उसको कैश चाहिए. सो इफ अ कंपनी इज generating enough cash, then that company is considered to be a very safe company and very good company with respect to its operations. तो ये हो गया इस स्कैन का, फीफा जो कॉम्बिनेशन स्कैन है उसका पूरा मतलब, पूरा इंटरप्रिटेशन. अब जब आपको ये सारा चीज पता है, आपको गोल पता है, आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव पता है, सो अब आप जब सारे स्टॉक्स को फिल्टर करोगे, जब स्टॉक्स में आओगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो सारे स्टॉक्स इसमें फिल्टर हो रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स वो सारा का सारा पैरामीटर मीट करते हैं. तो आपको उन सारा पैरामीटर्स को लेके उस इन सारे स्टॉक्स को और बेटर आपको फिल्टर करने का दरकार नहीं है. अब आपके पास सिर्फ एक ही काम बचता है. अब आपने जो ये सारे 7 स्कैन लगाए, ये 7 स्कैन आपको 5,000 स्टॉक्स से ज्यादा मार्केट्स में लिस्टेड उससे फिल्टर करके ये सारे स्टॉक्स पे ले आया है. अब इन सारे स्टॉक्स में से आपको कौन से स्टॉक्स चूज करने हैं वो आपका आगे का काम है. अब जैसे स्कैन मॉड्यूल था, यहाँ पे भी वही सेम चीज है. यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है, आप इसको और फिल्टर लगा के और बेटर फिल्टर कर सकते हो और आउटपुट को कम कर सकते हो. आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर फर्दर यूज कि आपको डाउनलोड करना है. सबसे बेस्ट पार्ट कॉम्बिनेशन स्कैन में जो स्कैन से भी ज्यादा पावरफुल काम आता है, दैट इज इज बैक टेस्टिंग. अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बना रहे हो, आप फंडामेंटल टेक्निकल मिक्स करके बना रहे हो या सिर्फ टेक्निकल बना रहे हो, सो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो पिछले 7 दिन तक का. फॉर एग्जाम्पल, आपने नेक्स्ट इंटरडे के लिए कोई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया कि आपको इन सारे स्टॉक्स के अंदर कल नेक्स्ट इंटरडे में ट्रेड करना है. तो आप क्या कर सकते हो, आप वो कॉम्बिनेशन स्कैन बना के उसके जो पिछले 6 दिन का जो ट्रेड है उसको जाके चेक कर सकते हो कि वो सारे पिछले वीक के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन स्कैन आपने बनाया ये कैसा परफॉर्म कर रहा है. एंड इवेंचुअली आप नेक्स्ट डे उन सारे स्टॉक्स का मूवमेंट ट्रैक रख सकते हो कि जो स्टॉक्स आपके स्कैन में फिल्टर होके आ रहे हैं वो स्टॉक्स से एक्चुअली वो मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको चाहिए. और अगर नहीं, देन ऑब्वियसली आप वापस से स्कैन्स में जाके आप स्कैन्स को चेंज कर सकते हो.
किसी भी स्टॉक को स्कैन को यहाँ से क्रॉस करके रिमूव कर सकते हो एंड वापस और स्कैन ऐड कर सकते हो। अब आप लोग को एक और चीज बताऊं, अगर यहाँ पे परफेक्ट मैच जो है, परफेक्ट मैच का मतलब है कि जो स्टॉक है वो आपने जितना स्कैन ऐड किया वो हर स्कैन को इक्वली क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो 7 आइकन्स है। लेकिन कई सारे ऐसे भी स्टॉक हो गए जो सातों के सातों स्कैन को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी काफी अच्छे स्कैन को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ने ऑलमोस्ट देयर का भी एक ऑप्शन प्रोवाइड करके रखा है, जिससे कोई भी स्टॉक मिस नहीं हो जाए, एक अच्छा स्टॉक मिस नहीं हो जाए। तो ऑलमोस्ट देयर का लॉजिक है कि आप जितने भी स्कैन्स ऐड कर रहे हो, अगर कोई भी स्टॉक उसका 75% से ज्यादा स्कैन्स को क्वालिफाई करता है तो वो ऑलमोस्ट देयर के अंदर आ जाएगा। तो इससे आप देखोगे 6 स्कैन 6/7 इज मोर देन 75%, इसलिए वो सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट देयर के अंदर आ रहे हैं। सो इस वे में आप इन सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो, आप ट्रैक रख सकते हो कि आप इसको और कैसे फिल्टर करना है। इन सारे स्टॉक्स में से कौन सा बेटर स्टॉक है, ये तो ऑब्वियसली फॉर शॉर्ट स्विंग या लॉन्ग स्विंग स्टॉक्स है, तो आप इसमें और बेटर देख सकते हो कि हाँ इसका ये स्टॉक है टेक्निकली, आपको किस लेवल पे इसको एंट्री लेना चाहिए, एग्जिट लेना चाहिए, आगे और कितना मोमेंटम बचा है। तो आप इससे आपका मेजोरिटी ऑफ द जो काम है ऑलरेडी आपका हो चुका है। अब आपको खाली इसके अंदर से कौन से स्टॉक्स को आपको फिल्टर करना है वो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड इशू पे, अपने रिस्क एपेटाइट बेसिस पे, आपके जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग स्टाइल है उसके बेसिस पे आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द माइक कॉम्बिनेशन स्कैन्स। तो समझते हैं कि और क्या है। उसके पहले मैं आप लोग को वो पीडीएफ शेयर कर दूं। और मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है, प्लीज हैव अ लुक एंड प्लीज डाउनलोड द फिल्टर और प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ। तो हम लोग समझे एक बार। पूजा जी, कोई डेज फिक्स नहीं होता कि कौन से कितने दिन तक आपको अपने स्विंग या पोजीशन रखने हैं। इट इज ऑल अबाउट द लेवल कि वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे मैनेज कर रहा है। अगर वो स्टॉक अगर एग्जिट सिग्नल्स दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल चार्ट्स, देन चाहे फिर वो 4 दिन हो या 4 महीना हो, आपको उसको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर कोई स्टॉक एग्जिट सिग्नल नहीं दे रहा है, देन आपको इवेंचुअली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए फॉर बेटर रिटर्न। सो इट इज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको स्विंग में 2 दिन रखना है, एक हफ्ता रखना है, एक महीना रखना है, या पोजिशनल में 6 महीना रखना है। इट इज ऑल डिपेंड ऑन स्टॉक टू स्टॉक। उस स्टॉक का क्या मोमेंटम है, क्या न्यूज ट्रेंड्स है, क्या टेक्निकली। सो आपको वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही आप एग्जिट कर सकते हो। या अगर आपको खाली अपने रिस्क रिवॉर्ड बेसिस के ऊपर जाना है कि हाँ इस स्टॉक के अंदर अगर आपको 5% मिल रहा है, आपको 5% पे बुक करना है, तो इवेंचुअली 5% पे बुक करके निकल सकते हो। ट्रेड मार्केट जी, फॉर स्ट्राइक मीन्स इंडिकेटर सक्सेस रेट, प्लीज लेट मी टेल यू कि किसी भी स्कैन का कोई सक्सेस रेट नहीं होता, कोई इंडिकेटर का कोई सक्सेस रेट नहीं होता, क्योंकि आज जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी स्कैन, आप हो सकता है कि आपके लिए वो स्कैन एक दिन का मूवमेंट हो, किसी और के लिए वो एक वीक का मूवमेंट हो, किसी और के लिए वो एक महीने का मूवमेंट हो। राइट। सो आप वो जो सक्सेस रेट है वो उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो ये सारे स्कैन्स का कोई सक्सेस रेट नहीं होता। वन प्लस जी, रिकॉर्डिंग आप प्लीज सपोर्ट टीम को रीच आउट करिए। अगर आप सोशल मेंबर हैं देन आपको सोशल में जाके आपको रिकॉर्डिंग सर्च करने से मिल जाएगा। अगर आप सोशल मेंबर नहीं है देन प्लीज डू रीच आउट टू आवर सपोर्ट टीम, वो आपको गाइड कर देगी कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे और कहाँ से मिलेगा।
एसएसजी में अगर आप लोगों को मैं इस Q&A सेशन के बाद मैं दिखा दूंगा कि हेड एंड शोल्डर स्कैन तक कैसे जाना है, एंड इट इज अंडर द चार्ट पैटर्न स्टैक। मल्लिकार्जुना मूर्ति जी, बैक टेस्टिंग रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इज कि आपने अगर कोई माई कॉम्बिनेशन स्कैन बनाया है, या अगर आप किसी स्कैन को ट्रैक रख रहे हो, तो उस स्कैन के अंदर आप उस स्कैन का प्रीवियस जाके अगर आप उन सारे स्कैन्स का जो आउटपुट है उसको अगर आप टेस्ट करोगे कि वो सारे जो स्टॉक्स है वो इवेंचुअली अपने कमिंग वीक डेज में, कमिंग वीक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको बैक टेस्टिंग बोलते हैं कि उस बैक टेस्टिंग को आप इंटरप्रेट कर पाओगे। हेलो। यस। और सादिक जी, फीफा स्ट्रैटेजी पे एंट्री और एग्जिट आपको आपके अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है या मूवमेंट आ सकता है आने वाले टाइम पे। जैसे मैंने बोला कि कौन से स्टॉक्स 52 वीक हाई बना के नीचे आ रहे हैं या वापस हाई बनाने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वो ट्रैक रखना पड़ेगा। सुशांतु जी, कम से कम अगर मैं एकदम बेयर मिनिमम लॉजिक पे बोलूँ तो जब तक अगर 50 SMA 200 SMA को क्रॉस करके नीचे से क्रॉस कर रहा है, तो जब तक वापस से 50 SMA 200 SMA को ऊपर से क्रॉस नहीं करते, तो तब तक अगर मैं एकदम बेयर मिनिमम लॉजिक से बोलूँ तो उतना तो आप लोगों को आप उतना दिन तक होल्ड कर सकते हो कि जब तक वापस से उल्टा क्रॉस ओवर नहीं आता। हाउ वी कैन चेक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट वेक्स कॉम्बिनेशन। मैंने आप लोगों को PDF शेयर किया वेक्स का कॉम्बिनेशन स्कैन्स का, आप लोग प्लीज उसको चेक कर सकते हो। और पूजा जी, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम फीफा सिलेक्टेड स्टॉक्स, प्लीज आप लोग ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, तो ये जो सारे कॉम्बिनेशन स्कैन होते हैं ये आपको खाली स्टॉक फिल्टर में मदद करता है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन स्कैन बनाओगे तो वो आपको स्टॉक फिल्टर करने में मदद करेंगे। बट आप जब एंट्री एग्जिट कर रहे हो तो आपको उसको चार्ट्स पे देखना पड़ेगा कि उसका क्या है, उसका RS क्या है, या उसका SMA EMA क्या है, क्या कोई क्रॉसओवर हो रहा है क्या, या वो ओवरबॉट जोन में, ओवरशूट जोन में। तो जो इंडिकेटर आपको समझ में आता है उस इंडिकेटर के बेसिस पे आप अपना एंट्री एग्जिट अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ट्रेड मार्केट जी, आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको माई स्टॉकेज में जाना पड़ेगा। वेब डॉट स्टॉकेज पे जाके माई स्टॉकेज में आप अपने ऐप पे भी बना सकते हो। और आपको वेबसाइट पे नहीं, आप अपने ऐप पे भी जाके माई स्टॉकेज के अंदर जाके माई कॉम्बिनेशन स्कैन के अंदर जाके बना सकते हो। सो लेट्स मूव टू ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सो अब हम लोग आगे हम लोग के ट्रेंडिंग स्टॉक्स टैब पे, तो ये सारा आज का डेटा है। सो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मार्केट्स 9 o'clock पे चालू होता है, 9 to 9 7 प्री मार्केट प्राइसेस चलती है। एंड एट 9 8 AM itself, जो प्री मार्केट के अंदर जो प्राइसेस फिक्स होती है फॉर ओपनिंग 9 8 पे वो अपडेट हो जाता है। तो आप अगर ट्रेंडिंग स्टॉक्स टैब में आओगे एट 9 8, राइट, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 9 8 की जो आज की जो प्राइसेस है, आज का जो मार्केट का मूड है, उसके हिसाब से मेजर स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे सारी की सारी स्टॉक्स मिल जाएंगी। जो स्टॉक्स गेनर साइड में है, लूजर साइड में है। आप चाहे तो अपना एक रिस्पेक्टिव फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको खाली निफ्टी 50 स्टॉक्स को ट्रैक रखना है, या जो मैंने आपको पहले बताया खाली NSE स्टॉक्स या खाली PSU स्टॉक्स, आप इसे ट्रैक रख सकते हो। एंड फ्रॉम 9:15 इटसेल्फ, जब से मार्केट चालू होगा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर हर मिनट के अंदर आपका जो प्राइस डेटा है वो अपडेट होता रहेगा। एंड जो गेनर्स एंड लूजर्स के साथ जो आपका चेंज चेंज परसेंटेज है, ये डेटा अपडेट होता रहेगा।
तो उससे क्या होगा, आप मार्केट में एकदम ट्रैक में रहोगे कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा गेनर साइड पे है, कौन से स्टॉक्स गेनर्स पे है, कौन से स्टॉक लूजर्स पे है। तो दिस वाज अबाउट द प्राइस एक्शन, कि आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट के दौरान, मार्केट के बीच में कौन से स्टॉक्स के अंदर प्राइस मूवमेंट आ रहा है। ठीक है। अब इससे आपको स्टॉक्स फिल्टर हो गया, आपको स्टॉक्स समझ में आ गया कि हाँ ये सारे स्टॉक्स आज लाइमलाइट में है, बीट ऑन द बुले गेनर साइड, बीट ऑन द लूजर साइड। अब व्हाट यू ऑल डू नीड टू, व्हाट यू ऑल कैन डू इज, अब आप लोग वॉल्यूम शॉकर पे आ सकते हो। जैसा मैंने पहले बोला, किसी भी स्टॉक के अंदर का प्राइस मूवमेंट आ रहा है एंड अगर वो इवेंचुअली वॉल्यूम से अगर बैक किया हुआ है, मतलब दैट प्राइस मूवमेंट इज अ जेन्युइन प्राइस मूवमेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, आप वॉल्यूम शॉकर में आए हो, तो किसी भी स्टॉक के अंदर ये जो यहाँ पे आपको एवरेज वॉल्यूम दिख रहा है, ये प्रीवियस 5 डेज का एवरेज वॉल्यूम है। सो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, ये स्टॉक ने जैसे ही द वेरी मोमेंट इस स्टॉक का आज का वॉल्यूम 1,50,448 से क्रॉस होके ऊपर आया होगा, दैट इज 1,50,449 भी अगर आया होगा ना, तो ये स्टॉक हाथों हाथ उसी समय इस स्क्रीन पे आ जाएगा, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, एज सून एज इट क्रॉसेज इट्स एवरेज वॉल्यूम, प्रीवियस एवरेज वॉल्यूम। तो इससे आपको हाथों हाथ वो सारे स्टॉक्स रेडार में आपको ड्यूरिंग द मार्केट आज, ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट आज आपको समझ में आ जाएंगे कि इन सारे स्टॉक्स का जो वॉल्यूम है वो अपने पिछले 5 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है। एंड इवेंचुअली आपको साथ ही साथ उसका जो एलटीपी है एंड जो प्राइस मूवमेंट है वो आपको उसी समय दिखता रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर ये स्टॉक आज 9% भागा है, तो उस स्टॉक ने करीब अपना एवरेज वॉल्यूम 1-2% पे क्रॉस किया होगा, 2-3% पे क्रॉस किया होगा, राइट। उसके बाद ये इतना ऊपर तक गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप उस समय इस स्टॉक्स को कैच कर सकते हो, तो आपको इवेंचुअली आप जो आगे का जो मूव है उसको आप ट्रेल कर सकते हो एंड उसको आप पूरा बेनिफिट ले सकते हो। सेम गोज फॉर एग्जाम्पल चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो का प्रीवियस 10 दिन, 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम वॉज 10,65,000, बट विच इज ह्यूज। लेकिन द वेरी मोमेंट एंड आज का वॉल्यूम इट वॉज 1,62,64,000। तो जैसे ही आज का वॉल्यूम 10 लाख क्रॉस किया होगा, मोर देन द एवरेज वॉल्यूम, ये स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आप लोग ने उस समय इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया होता, तो वो लाइक आई सेड वो पक्का 2-3% या 4% के मूव में आया होगा, राइट। तो अगर आपने 2-3-4% के मूव पे अगर इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया होता, तो इवेंचुअली ये जो आगे का जो 16% का मूव है और जो 10-12% का मूव है, आप इसको भी कैच कर सकते थे ड्यूरिंग इंट्राडे में, एज पर योर ओन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। कोई किसी का 2%, किसी का 4%, किसी का 5%। सो आप इसके थ्रू भी आप स्टॉक फिल्टर कर सकते हो काफी सारा। एंड आपको इंट्राडे में बहुत अपॉर्चुनिटीज, आप खाली ट्रेंडिंग स्टॉक्स के थ्रू ही ढूंढ के आप निकाल सकते हो। अब जो मैंने आप लोगों को 52 वीक हाई लो का ब्रेकआउट का स्कैन्स बताया, या जो मैंने आप लोगों को ऑल टाइम हाई लो का स्कैन्स बताया, वो आपको अगर इंट्राडे में ही पता चल जाए, द वेरी मोमेंट की किसी स्टॉक के अंदर एक नया 52 वीक हाई बना, या किसी स्टॉक के अंदर नया ऑल टाइम हाई बना या लो बना, राइट। यस। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई पेट्रो, चेन्नई पेट्रो का अगर आप चेक करोगे, अब यहाँ पे आप चेन्नई पेट्रो का प्रीवियस जो हाई था, इट वाज 1036.30। ठीक है। द वेरी मोमेंट आज मार्केट में चेन्नई पेट्रो ने 106 36.40 का प्राइस रिपोर्ट किया, राइट, एंड वो यहाँ पे अपडेट हुआ। सो द वेरी मोमेंट इट विल गेट अपडेटेड ओवर हियर 1036.40 पे। उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका प्रीवियस 52 वीक हाई जो था उस इसने अपने एक नया 52 वीक हाई बना लिया है। सो 1036.40 के बाद ये स्टॉक ऊपर में 1098.65 तक गया है। सो दैट इज क्लियर कट अ 60 रुपीज मूव, विच इज अराउंड अराउंड 6% का मूव। तो आप इवेंचुअली आप इंट्राडे के अंदर ही, लाइक आई सेड, आप वॉल्यूम शॉकर के थ्रू चेन्नई पेट्रो को आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, 52 वीक हाई के थ्रू आप चेन्नई पेट्रो को आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर आपको और मोर सो ऑफन जाना है, तो जहां तक इस स्टॉक ने अपना आज ऑल टाइम हाई लो भी बनाया है, राइट, इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लो भी बनाया है, तो आप इसको ऑल टाइम हाई के बेसिस पे भी आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते थे एंड आप इंट्राडे के अंदर ही आप 5 to 6% का मूव आप टैप इन कर सकते थे। सो दिस इज हाउ कि आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के थ्रू आप कैसे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो।
ये जो मोस्ट विजिटेड सेक्शन है, मोस्ट विजिटेड ये वो सेक्शन है जहाँ पे ये वो सारे स्टॉक्स है जिनको यहाँ पे हम लोग या यूजर्स बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चेक कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली आप चारों टैब में देखोगे, अगर आप कोई रेस्पेक्टिव फिल्टर लगाते हो तो वो जो फिल्टर है, वो फिल्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनएससी एफएनओ स्टॉक्स में फिल्टर लगाया, तो वो जो फिल्टर है वो अक्रॉस ऑल टैब्स अप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम स्टॉकर्स में आपको समझ में आएगा कौन से स्टॉक्स है जिसके अंदर एफ वॉल्यूम आएगा। इस टाइप के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर जिन्होंने अपना नया 52 वीक हाई बनाया या नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो उसके बेसिस पे भी आप इन सारे स्टॉक्स के अंदर ट्रैक रख सकते हो, उसको ट्रेड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द चार्ट कि वो स्टॉक आगे और कैसा मूवमेंट आपको दिखा रहा है। अगर ऑब्वियसली आपको इंट्राडे में अगर ये चीज समझ में आ जाए एंड आपको मिल जाए कि हाँ इस स्टॉक में एक नया 52 वीक हाई अभी जस्ट क्रॉस किया है, या इस स्टॉक ने अभी अपना नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है, तो ऑब्वियसली आप वो जो आगे का जो उस समय का जो दैट करेंट मोमेंटम है, उस जो ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट जो रहता है, आप उसको टैप इन कर सकते हो खाली ट्रेडिंग वाया ट्रेंडिंग स्टॉक्स के थ्रू। अब दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अब जैसे मैंने आप लोगों को इन दी वेरी इनिशियल ऑफ द मार्केट सेशन, मैंने आप लोगों को स्मार्ट सेशन मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि कैसे स्कैन्स माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स को यूज करके आप अपना जो एनालिसिस है एंड जो स्टॉक पिकिंग है उसको और बेटर इंप्रूव कर सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल ये चीज आप लोग को मानना पड़ेगा, मतलब ये चीज आप लोग को अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा, यू नीड टू वर्क ऑन दिस, दैट मार्केट के बीच में मार्केट स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं होता है, राइट। व्हाट वी नीड टू इज वी नीड टू डू आवर एनालिसिस बिफोर मार्केट स्टार्ट्स। तो दैट इज वाई व्हाट वी प्रेफर एज एन ईओडी प्लेटफॉर्म, कि हम लोग का मतलब ही, हम लोग का गोल ही ये है कि एज सुन एज ईओडी डेटा स्ट्राइक्स इन अराउंड 7:38 PM, आप उसके बाद क्या करोगे कि आप ऑब्वियसली आपने कई सारे आप स्कैन यूज कर रहे हो, तो आपने अपना कोई रिस्पेक्टिव स्कैन्स बना के रखा है जो आपका फेवरेट स्कैन्स है, तो आप उन सारे स्कैन्स को जाके चेक करोगे ऑन अ डेली बेसिस कि हाँ उन सारे स्कैन्स के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है। अब उसके अंदर आपको अगर ऑब्वियसली वो सारे स्कैन्स अगर आपके फेवरेट स्कैन्स है तो उसका जो आउटपुट होगा वो आपका पहले का देखा हुआ होगा, उस स्कैन का जो आउटपुट है वो कैसा परफॉर्म करता है, यू मस्ट बी नोइंग। तो आप क्या करोगे, उसके अंदर से आप कुछ कुछ स्टॉक फिल्टर करोगे जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये स्टॉक आपको आगे और कंटिन्यूड मोमेंटम देगा, ठीक है। अब आपने स्कैन्स यूज कर लिया, अब ऑब्वियसली कुछ कुछ स्कैन्स बना के आपने अपना माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स बना के रखा है वो वेरी डिफरेंट पर्पसेस। तो आपको डेली बेसिस पे जाके अपना माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स पे जाके आपको माई कॉम्बिनेशन स्कैन का आउटपुट चेक करना है कि उसमें क्या आउटपुट आ रहा है। अब उसमें से जो आउटपुट आ रहा है उसके अंदर से आप और फर्दर फिल्टर करके आप अपना स्टॉक्स फिल्टर आउट कर सकते हो कि हाँ ये सारे स्टॉक्स को मेरे को कल मार्केट में रेडार में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली का टारगेट बना लो कि आपको डेली 3 स्टॉक में या डेली 5 स्टॉक को आपको ट्रैक में रखना है, राइट, एंड वो 3 या 5 स्टॉक आप पिछले दिन ही आप उसको ट्रैक कर लो, लिस्ट बना लो, बिकॉज ऑब्वियसली ड्यूरिंग द मार्केट आज आप 5 क्या आप 2 स्टॉक का भी आप एनालिसिस उसी समय हाथ हुआ तो आप आपको करने में दिक्कत होगा। दे आर मोर देन 5,000 स्टॉक्स, राइट। तो आप मार्केट आवर्स के बीच के अंदर तो आप 5,000 स्टॉक्स को फिल्टर नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते कि नहीं ये सारे स्टॉक्स मेरे को ट्रेड लेना है, क्योंकि जब तक आप एनालाइज करोगे तब तक आप देखोगे वो जो ट्रेड था, जो मोमेंटम था वो चला गया। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल यू मेड अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 स्टॉक्स बिफोर मार्केट आज बिफोर मार्केट स्टार्ट, ठीक है। इधर यू डू इट बिफोर नाइट और इधर यू डू इट इन द मॉर्निंग बिफोर मार्केट स्टार्ट। अब एज सोन एज द मार्केट स्टार्ट एट 9:15, आप पहले से आके आप ट्रैक रख लो कि उन 5 स्टॉक का बिफोर मार्केट स्टार्टिंग दैट इज फ्रॉम 9:08 आप ट्रैक रख लो कि वो उन 5 स्टॉक का क्या मोमेंटम है, क्या वो ग्रीन साइड पे है, क्या वो रेड साइड पे है, क्या आपके हिसाब से वो कंटिन्यूड मोमेंटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो 5 स्टॉक बनाया था उस 5 स्टॉक में से 3 स्टॉक ग्रीन में है, दैट इज 3 स्टॉक आज ऊपर खुले अपसाइड खुले, तो आप उस 3 स्टॉक को और बेटर रिटार में रख सकते हो। एंड फिर एज सुन एज द मार्केट ओपन्स, आप अगर वो देखो कि वो 3 स्टॉक आपको ट्रेंडिंग स्टॉक में दिख रहे हैं यहाँ पे गेनर पे, राइट, तो आपका जो कन्विक्शन होगा ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कन्विक्शन ऑफ एनालिसिस कि हाँ आपको पहले से पता था कि इन 5 स्टॉक के अंदर मूवमेंट आएगा एंड वो स्टॉक ऑलरेडी मूवमेंट में है एंड यू हैव ऑलरेडी प्री आइडेंटिफाइड देम, सो इट विल हेल्प यू एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट योर एबिलिटी टू टेक ट्रेड्स। एंड देन इवेंचुअली आप उसी 5 स्टॉक में जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मूवमेंट इसके अंदर ज्यादा बेटर आ रहा है, आप उसके अंदर आप अपना इंट्राडे का ट्रेड या आप स्विंग ट्रेड आप पहले से ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक अगर कल स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे को एक अच्छा ब्रेकआउट देगा जिसको मैं 3-4 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ, तो अगर आप उसको आप पहले दिन ही उसको ट्रैक रख के अगर आप उसको फिल्टर कर लोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट आज आपको वो हैसल से नहीं निकलना पड़ेगा कि नहीं कौन सा स्टॉक बाई करूं कौन सा स्टॉक सेल करूं, राइट। तो दिस इज हाउ
एंड ये हम लोग का काफी टाइम से हम लोग ने ये चीज प्रैक्टिस किया है, एंड हम लोग के कई सारे यूजर्स पे प्रैक्टिस किया है, एंड बेस्ड ऑन दी years of research and feedback we have received कि this is a very good strategy to use scans, my combination scans and trending stocks in sync. आप तीनों को सिंक में यूज करोगे तो आप इवेंचुअली देखोगे कि आपका जो ट्रेडिंग कॉल्स है, आपका जो इंट्राडे पोजीशंस है, आप स्विंग पोजीशंस या जो भी आप इन्वेस्टमेंट पोजीशंस ले रहे हो, उसका जो एक्यूरेसी है एंड उसका जो व्हाट शुड आई से, आपका जो कैपेबिलिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहेगा, एंड आपको अपने ऊपर पे आपका जो कॉन्फिडेंस है, विच इज वेरी मोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेल ट्रेडिंग इन द मार्केट्स, वो आपका आप देखोगे कि डे बाय डे और बूस्टअप हो रहा है. सो लेट्स सी व्हाट इज द Q&A सेशन. विजय कुमार जी, मैं वापस से पीडीएफ, आप लोग प्लीज एक बार सब चेक कर लीजिए, मैं वापस से एक बार वो पीडीएफ को शेयर कर रहा हूँ, जो जिन लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया प्लीज डाउनलोड इट दिस. और ऐसे जी वहां पे आप हाईएस्ट वॉल्यूम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को प्लीज ये चीज समझिए कि हाईएस्ट वॉल्यूम से फर्क नहीं पड़ता कि किसी कौन सा स्टॉक के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है. आपको स्टॉक, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप वोडाफोन आइडिया का स्टॉक देखोगे, तो वोडाफोन आइडिया का आप देखोगे कि उसका जो स्टॉक है 10 रुपए का, जो 12-13 रुपए का स्टॉक है, उसका जो वॉल्यूम है वो आपको डेली लेवल पे सबसे हाईएस्ट लेवल दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसका प्राइस बहुत छोटा है, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम पे ट्रेड होता है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड होता है. अब भाई अगर आप रिलायंस या नेस्ले जैसे स्टॉक्स या एमआरएफ जैसे स्टॉक्स देखोगे, तो उसका वॉल्यूम आपको बहुत कम दिखेगा. क्यों? क्योंकि वो सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा ही हाई हाई वैल्यूड हाई प्राइस स्टॉक्स हैं. तो वॉल्यूम हाई होने से लो होने से फर्क नहीं पड़ता. उस स्टॉक का वॉल्यूम उसकी उसी स्टॉक के प्रीवियस वॉल्यूम से कैसा है, उससे आपको फर्क उसको उससे आपको चेक करना पड़ेगा, जिसके बेसिस देखोगे जो सॉर्टिंग किया हुआ है, वो सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ परसेंटेज किया हुआ है, कि कितने एक्स से वॉल्यूम आज बढ़ा हुआ है, वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प करेगा रादर देन फिल्टरिंग आउट स्टॉक्स कि जिसमें सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है. आप चेक कर लो, वोडाफोन आइडिया का आपको हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम ही मिलेगा. सुरेश शर्मा जी, हाँ, रेट चेंज लाइव होता है हर मिनट पे, एनएससी का जो प्राइसेस है वो आपका हर मिनट पे अपडेट होता है. और जूम यूजर जी, आपका एसएमई स्टॉक के लिए एसएमई जोन है हम लोग का, आप प्लीज एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर या एसएमई जोन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं. विनोद जी, लाइक आई सेड कि हम लोग का जो ऐप है वो ईओडी एप्लीकेशन एनालिटिक्स है, निफ्टी सीपी के लिए आप ऑब्वियसली इवेंचुअली यूज कर सकते हो, बट आपको दिखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से यूज कर रहे हो. अभी जी आप कॉम्बिनेशन स्कैन में जाके आपको जो जो स्कैन लगता है आरएस और आरएस आई का, वो सारे स्कैन को जाके ऐड कर सकते हो. सो आई गेस सारे आई हैव ट्राइड टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द क्वेरीज. अगर कोई क्वेरी छूट गया हो देन प्लीज डू रीच आउट टू अस बाय सॉकेट सपोर्ट टीम, या सोशल मीडिया के थ्रू. आपको आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आपका कोई भी फीचर रिक्वेस्ट है, एनीथिंग, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस वाया सपोर्ट टीम और सोशल मीडिया, एंड हम लोग श्योरली कोशिश करेंगे कि हम लोग आपके सारे क्वेरीज को आपको रिजॉल्व करेंगे, एंड आपके जो भी रिक्वेस्ट है उसको इन दी फ्यूचर हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट करें स्टॉकेज के अंदर. और टीम दी एफएनओ सेशन, आई डोंट थिंक हम लोग का कोई स्पेसिफिक एफएनओ सेशन होता है, बट आप ऑब्वियसली जाके विवेक सर का काफी सारे वीडियोस है एफएनओ के ऊपर, तो आप उसको जाके प्लीज आप चेक कर सकते हो. शांतनु जी, आप चेक कर सकते हो, आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर जाना है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर आपको वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जैसे ही कोई भी स्टॉक अपना जो प्रीवियस 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है उसके अगर ऊपर क्रॉस करता है, तो वो स्टॉक सारे यहाँ पे आ जाते हैं, देन फिर देन दीज नंबर्स वो अपडेट होता रहता है, वो बढ़ता रहता है. तो आप वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर ही आपको आगे समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू ऑल लाइक द सेशन एंड कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स. आप अब लोग अपना मार्केट की पहले ही एनालिसिस करो, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट. एंड आज ही आप लोगों ने सीखा है तो प्लीज डू गो एंड यूज दी सॉकेट स्कैन्स एंड माई कॉम्बिनेशन स्कैन्स. थैंक यू सो मच.